Good afternoon, children. As I said you in my last lecture, we have discussed the various problems of admission, of appropriation. Now, in this lecture, we will discuss जो भी प्रॉब्लम्स वाली न्यूमेरिकल्स हैं या ये कहें कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त जो प्रॉब्लम्स हमें वेरियस टॉपिक्स पर आनी हैं, जिन बातों का हमें खास ध्यान रखना है, उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने पीछे जो बोर्ड है इसमें प्रॉब्लम को भी लिखा हुआ है और इसके सॉल्यूशन को भी लिखा हुआ है। एज आई सेड कि मैंने सॉल्यूशंस और उसका प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन दोनों आपको देने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रादर, वेरियस थिंग्स, बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। बट एक जो मेन चीज है गाइस, वो ये है कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ पर्टिकुलर मंथ्स का ही कैलकुलेट करना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में है, अ पार्टनर ड्रॉज 10,000 per month under the partnership deed. Interest on drawing is to be charged at the rate 5% per annum. Calculate interest if drawings are made regularly. The first case is if this 10,000 is withdrawn in the beginning of every month. In the second case, it works out at the middle of every month. And the last case is at the end of every month. It I said you very clearly कि frequency of drawing the amount, पैसा निकालने का पैटर्न जो है वो पैटर्न हमें डिसाइड करवाता है कि मंथ्स कितने मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आपको बताया था मैंने, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ if a fixed amount is withdrawn, then it will always be calculated 6.5 months interest. In the middle of every month, it will be calculated 6 months interest. And at the end of every month, it will be calculated 5.5 months interest. So guys, here first point is if the partner is withdrawing 10,000 per month and it's withdrawn in the beginning of every month, solution will be 10,000 per month. We know that there are 12 months in a year. So total drawing in the year is 10,000 into 12, it is 1,20,000. Now the interest will be charged on 1,20,000. So interest will be 1,20,000 into 5% rate of interest दिया हुआ है क्वेश्चन में. So I made it into 5/100 and months we have decided it is 6.5/12. ये हमारा इंटरेस्ट बैठा 3,300 का. अब आप देखिए यहाँ पर मैंने 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकाला है. Why? Because partner is withdrawing in the beginning of every month. Second case comes when partner is withdrawn in the middle of every month. Middle of every month में again the same story. Total drawings is in the year is 10,000 into 12, 1,20,000. But we have to remember that in the middle of every month, only 6 months interest will be calculated. The interest will be charged only for 6 months. So 1,20,000 into 5/100 into 6/12. That indicates months. It indicates the rate of interest. This is the total amount I have calculated. The interest works out 3,000. The last case is the total drawings in the year is rupees 10,000 multiplied by 12, again 1,20,000. But this is withdrawn at the end of every month.
महीने के आखिर में, महीने के आखिर में अगर पैसा रेगुलरली विड्रॉ किया जाता है, then interest is going to be charged for 5.5 months. So 1,20,000 is the amount of drawing throughout the year. It was 1,20,000 multiplied by 5 by 100, that is rate of interest. And months we have decided, that is 5.5 over 12. It works out 2,750. So I feel that I made it clear that if a fixed amount is withdrawn in the beginning of every month, 6.5 महीने का interest, in the middle of every month they are withdrawing, so 6 months का interest, and if it is withdrawn at the end of every month, then 5.5 months interest. Another case, another question before you. Here in this question, the amount of drawings are made monthly, on monthly basis. But in this question, this is quarterly. Quarterly, once again before you, I am explaining. Quarterly means every after 3 months. Quarter means 1/4 of the year. 12 upon divided by 4, it means 3. 3, it gives us 3. And again, every a quarter is containing 3 months. Here the question is, calculate interest on drawings of Siddhant. Siddhant is the name of partner, at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 2025 in each of the following cases. यहां पर इस क्वेश्चन में सिद्धांत पैसा विड्रॉ कर रहा है ड्रॉइंग का, एंड आपको डिफरेंट केसेस में कितना कितना इंटरेस्ट बैठेगा यह कैलकुलेट करना है. फर्स्ट केस है व्हेन सिद्धांत इफ ही विड्रू ₹60,000 in the beginning of each quarter. Second case, if he withdraw 60,000 at the end of each quarter. And third case, if he withdraw ₹90,000 in the middle of each quarter. स्टूडेंट्स, बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है, अगर क्वार्टरली विड्रॉइंग्स की जा रही हैं थ्रू आउट द ईयर, इसका मतलब वो पूरे साल में 4 बार पैसे को विड्रॉ कर रहा है. मैंने अभी कहा आपसे, क्वार्टर का मतलब 3 महीने, और 3 महीने के कितने बंच बनेंगे एक साल में? 4. इसका मतलब उसने 4 बार पैसा विड्रॉ करा. अगर मैं फर्स्ट केस डिस्कस करूं जहां पर सिद्धांत 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है, तो 4 बार उसने निकाला होगा. टोटल ड्रॉइंग्स इन द ईयर in first case is 60,000 into 4 makes 2,40,000. टोटल अमाउंट उसने 2,40,000 निकाला. लेकिन इस बात को एक सेकंड के लिए भी अपने दिमाग से अलग मत कीजिएगा कि यह 60,000 उसने इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाला है. सो इंटरेस्ट विल बी टोटल अमाउंट विड्रॉन, दैट इज 2,40,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10 by 100 into 10 by 100, and for how many months? 7.5 months. पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि if a fixed amount is withdrawn quarterly in the beginning of every month, then interest will be charged for 7.5 months. Here I was 7.5 months. So 2,40,000 total amount withdrawn into rate of interest 10 by 100 into months. It works out 15,000. Second case में when he withdraws 60,000 at the end of each quarter. बच्चों, फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 months का इंटरेस्ट निकलेगा. एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा. सो इन सेकेंड केस ऑल्सो अमाउंट विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 2,40,000 जो कि टोटल अमाउंट विड्रॉ किया गया. 2,40,000, where I am calculating the interest. 2,40,000 multiplied by rate of interest, that is 10%. I have written here 10 by 100. For how many months? 4.5 months. Because this drawing was made at the end of each quarter. Last case is
if we withdraw 90,000 rupees in the middle of each quarter. Students, in this fact, you must have watched that monthly ड्रॉइंग्स की जा रही हैं या क्वार्टरली ड्रॉइंग्स की जा रही हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ या इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ या एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. देन हमारे पास एक फिक्स्ड मंथ्स का लिस्ट आपको दिया हुआ है. एंड व्हाट वाज दैट, जो कि मैं कई बार अपने लेक्चर में रिपीट कर चुका हूं. इन दैट कंडीशन what you have to do, you have to learn those months. प्रॉब्लम्स कहां पर आती हैं? जब पीरियड हमारा पूरे साल का नहीं होता लेकिन हमें अकाउंट पूरे साल के बनाने होते हैं. उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को मैंने यहां पे लिखा हुआ है. काइंडली नोट इट डाउन, काइंडली लुक एट योर स्क्रीन वेरी क्लियरली. क्वेश्चन सेज average period is to be calculated as follows, and it's required when drawings are not made regularly throughout the year. वही बात मैं कह रहा था आपसे कि पूरे साल में रेगुलरली पैसा विड्रॉ नहीं किया, कुछ पर्टिकुलर मंथ में एक यूनिफॉर्म अमाउंट, एक सा अमाउंट कुछ पर्टिकुलर मंथ के लिए इंटरेस्ट ड्रॉइंग किया गया है. उस कंडीशन में मंथ्स की कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से की जाएगी. प्लीज वॉच इट, देखिए ध्यान से. दैट सेज मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. फॉर एग्जाम्पल, हम 31 मार्च को बुक्स क्लोज कर रहे हैं. पार्टनर ने 1 अक्टूबर को पैसा विड्रॉ किया और अक्टूबर से लेके हर महीने की पहली तारीख को वो 31 मार्च तक बुक्स को पैसा विड्रॉ कर रहा है ड्रॉइंग का 1 अक्टूबर से. तो मैंने लिखवाया आपको, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली अक्टूबर को उसने विड्रॉ किया. अक्टूबर पहली से लेके 31 मार्च तक मंथ्स काउंट कीजिए. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स. तो यहां पर आएगा मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 6. सेकंड है, प्लस करना है इसमें मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग. लास्ट ड्रॉइंग उसने कब की होगी? 1 मार्च को. बिकॉज मैंने कहा कि 1 अक्टूबर से लेके और एंड तक वो हर महीने की पहली तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है. तो पहला मंथ हुआ हमारा अक्टूबर, अक्टूबर के बाद 31 मार्च तक 6 मंथ. फिर लास्ट ड्रॉइंग उसने की होगी 1 मार्च को. तो पहली मार्च से 31 मार्च 1 मंथ, 6 + 1 that gives you 7 divided by 2, it means 3.5 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा. ये कब होगा? जब पूरे साल में पैसा विड्रॉ नहीं किया, पूरे साल रेगुलरली उसने पैसा विड्रॉ नहीं किया, कुछ पर्टिकुलर मंथ पर एक यूनिफॉर्म एक सा अमाउंट मंथली उसने विड्रॉ किया है. उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, A, B and C started a firm on 1 October 24. ABC ने एक फर्म को 1 अक्टूबर 2024 को शुरू किया. शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, प्रॉफिट को वो इक्वली बांट रहे हैं. A drew regularly ₹40,000 in the beginning of every month for the 6 months ended 31st March 25. B withdraw regularly 40,000 at the end of every month for the 6 months, and C drew regularly 40,000 in the middle of every month for 6 months ended 31st March. Calculate interest on drawing at the rate 5% per annum. In all these three cases, तीनों ही केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% चार्ज की जाएगी एंड बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च 25. गाइस, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं पूरे साल पैसा विड्रॉ नहीं किया. फर्म ही 1 अक्टूबर को शुरू हुई, 31 मार्च को फर्म बंद हो रही है, तब हमें पूरे साल का पीरियड नहीं मिला.
ये फॉर्मूला अप्लाई करे बिना आप मंथ्स का डिसीजन नहीं ले सकते। क्या है फॉर्मूला? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, दे हैव स्टार्टेड विथड्रॉइंग द अमाउंट ऑन 1st October. In the very first case, when A drew regularly 40,000 in the beginning of every month. First of all, सबसे पहले उसने 1 अक्टूबर को पैसा विड्रॉ किया। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, हाउ मेनी मंथ्स? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 months. Months left after first drawing. 1 अक्टूबर के बाद 6 महीने 31 मार्च तक पहुंचने में लगे, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। 1 मार्च को उसने सबसे आखिर में इस फाइनेंशियल ईयर में पैसा निकाला, इट मींस 1 महीना रहा उसके पास ये पैसा। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग 1 month, 6 + 1 divided by 2 gives us 3.5 months. टोटल 6 times 6 बार उसने 40,000 निकाला, तो आई हैव रिटन टोटल ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 2,40,000। इस 2,40,000 पर आपको 3.5 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आई हैव रिटन 3.5/12। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% per annum, so 5/100, it works out 7,000. While B is withdrawing 40,000 at the end of every month for 6 months, and at 31st March 25, हर महीने की आखिरी तारीख को निकाल रहा है। तो उसकी पहली ड्राइंग विड्रॉ करी हुई उसने 31st अक्टूबर, 1 अक्टूबर को नहीं, 31st अक्टूबर, 31st अक्टूबर से लेकर 31st मार्च तक, हाउ मेनी मंथ्स? अगेन कैलकुलेट द मंथ्स, दैट इज नवंबर, December, January, February and March. Only 5 months. So I have written months left after first drawing 5, और लास्ट ड्राइंग उसने की होगी 31st मार्च को। 31st मार्च को ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0. It becomes 5/2, 2.5 months interest. He must have withdrawn, he had withdrawn 6 times 40,000 rupees. So 40,000 into 6, it is 2,40,000. 2,40,000 पे 2.5 months interest, 2/5/12. Rate of interest again 5%, 5/100. It works out 2,500. And C withdrew regularly 40,000 in the middle of every month for the 6 month again. मिडिल ऑफ एवरी मंथ। गाइस यू रिमेंबर, बच्चों इस बात का ध्यान रखिए कि हमारी फर्म ही 1 अक्टूबर को शुरू हुई है। मिडिल ऑफ एवरी मंथ में 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी एंड 15 मार्च को उसने पैसा विड्रॉ किया। सो आई हैव टू कैलकुलेट द मंथ्स फर्स्ट ऑफ ऑल। वंस अगेन आई रिपीट, क्या है यहां पर? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग उसने करी 15 अक्टूबर को, तो आधा महीना अक्टूबर का, देन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 5.5 months, एंड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ओनली आधा महीना, दैट इज 0.5 months. इन दोनों का टोटल 6 divided by 2, it becomes 3 months. So in this case, on the total amount withdrawn for 6 months is rupees 2,40,000. This 2,40,000 पे I had calculated 3 months interest, that is 3/12. Rate of interest will remain same, 5/100. It is 3,000. So this is the story of calculation of interest on drawing. You must have noticed the 3 questions we have discussed in this lecture regarding the interest on drawing. And what were they? Very first question, where the monthly drawings was made. Second question, where the quarterly drawings was made. Third question,
where the period is not specified, or you can say that regularly, पूरे साल उसने रेगुलरली पैसा विड्रॉ नहीं किया. So as I said that calculation of interest on loan, बच्चों इसके बारे में भी मैं कई बार कह चुका हूं आपसे. अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, फर्म हमेशा उस पार्टनर को 6% इंटरेस्ट देने के लिए लायबल है, चाहे डीड हो या ना हो. लोन इंटरेस्ट पर 6% हमेशा उस पार्टनर को दिया जाएगा. अगर वो पार्टनर 6% से ज्यादा इंटरेस्ट मांग रहा है तो कभी नहीं दिया जाएगा, अगर जब तक कि सारे पार्टनर्स उस रेट पर एग्री ना हो. इस बात का आपको ध्यान रखना है. उसी पर बेस है मेरा ये क्वेश्चन. बैट एंड वॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स in the ratio of 2:3 with capitals of rupees 1,20,000 and 60,000 respectively. On 1st October 24, BAT and Wall given loan of rupees 2,40,000 and 1,20,000 respectively into the firm. BAT और Wall ने 2,40,000 और 1,20,000 रुपया 1 अक्टूबर 2024 को फर्म को लोन दिया. BAT had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of rupees 5,000. Loss for the year ended 31st March 25 before rent and interest to rupees 9,000 show distribution of profit and loss. बैट ने अपने घर का अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को यूज के लिए दे रखी है. उसके लिए वो 5,000 रुपए रेंट पाने के लिए एंटाइटल है. 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाले साल का जो लॉस था फर्म का वो 9,000 था. पहले भी मैंने अपने लेक्चर में कहा था कि इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, मतलब नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हो या इनएडिक्वेट प्रॉफिट. इनएडिक्वेट का प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट कम हो, तब हम जितना प्रॉफिट हमारे को अवेलेबल है उससे ज्यादा हम पार्टनर्स को अलाउ नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में. व्हाट रिपीटिंग अगेन, अगर हमारी फर्म में लॉस हो रहा है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट है पार्टनर्स को वेरियस चीज अलाउ करने के लिए, तो ऑलवेज रिमेंबर जितना हमारी फर्म का प्रॉफिट है उससे ज्यादा अमाउंट हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन के बारे में इससे ज्यादा अलाउ नहीं कर सकते. लेकिन ये जो दो लीगल चीजें हैं, रेंट, पार्टनर को रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, वो हमेशा प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे प्रॉफिट कम हो चाहे लॉस हो. यही क्वेश्चन इसी बात पर बेस है कि इस क्वेश्चन में फर्म का जो लॉस था वो 9,000 का था. बैट और बॉल 2,40,000 और 1,20,000 का फर्म को लोन दिया. इस लोन पर उनको 6% इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, चाहे लॉस है या प्रॉफिट. 5,000 पर मंथ का रेंट बैट को दिया ही जाएगा बिकॉज बैट ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है. इस कंडीशन में हम क्या करें? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कीजिए. इंटरेस्ट टू बी पेड टू बैट, इंटरेस्ट ऑन लोन रादर टू बी पेड टू बैट. बैट का लोन था 2,40,000. 2,40,000 was given by him on 1st October 24. How many months? October, November, December, January, February, March. Again, 6 month interest, that is 6/12. Rate of interest official government का जो rate of interest है that is 6/100, 6%. It works out 7,200. इसी प्रकार बॉल का इंटरेस्ट ऑन लोन I have calculated. Wall has given 1,20,000. I have written interest to be paid to Wall. 1,20,000 is the principal amount, the amount of loan.
it will be calculated 6%, that is 6 by 100, and only for 6 months. That 6 months works out 1st October to 31st March. This interest on loan is working out 3,600. You can say कि फर्म ने बैट को 7,200 का इंटरेस्ट दिया लोन पर और बॉन्ड को 3,600 का इंटरेस्ट देना है लोन पर। रेंट हमने पूरे 12 महीने का देना है बैट को, दैट इज 5,000 पर मंथ लिखा है इसमें, अब मंथली रेंट ऑफ ₹5,000 मंथली रेंट, एंड देयर आर 12 मंथ्स, इसमें कुछ शक ही नहीं है। तो रेंट टू बैट इज 60,000। अब लेट मी कैलकुलेट टोटल लॉस कितना हुआ फर्म को। 9,000 का लॉस तो था ही फर्म में, याद है आपको। इसके अलावा 7,200 ये इंटरेस्ट पे करे, 3,600 ये इंटरेस्ट पे करा, 60,000 रेंट पे करा, टोटल मिलाकर लॉस हो गया 79,800 का। ये लॉस बैट और बॉल में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:3 में मैंने बांट दिया। 79,800 multiplied by 2/5 works out 31,920, and in the same way 79,800 multiplied by 3/5 works out 47,800। रिपीटेडली बार बार इसको सुनेंगे आप लेक्चर को, बार बार मेरा इंडिकेटर जहां पे जा रहा है उसको देखेंगे, थिंग्स विल बी मोर क्लियर। नाउ वन मोर क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, that is here. They say Nirmal and Pawan are partners sharing profits in the ratio of 3:2. The firm had given a loan to Pawan of ₹5 lakh on 1st April 24. निर्मल और पवन दो पार्टनर हैं, रेशो उनका 3:2 है। फर्म ने पवन को 5 लाख रुपए का लोन दिया है, पार्टनर ने नहीं दिया, फर्म ने दिया है 1 अप्रैल को। इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। इस लोन पर फर्म पवन से 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। द फर्म टुक अ लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 दिसंबर। पवन को तो 5 लाख का लोन फर्म ने दिया और निर्मल से फर्म ने 2 लाख रुपए का लोन लिया है 1 दिसंबर 24 को। Before giving the effect of the above, the firm incurs a loss of ₹10,000 for the year ended 31st March 25. Determine the amount of to be transferred to profit and loss appropriation account. ध्यान रखिए, जो इंटरेस्ट हमने फर्म ने पवन से चार्ज करना है 5 लाख रुपीस पर 10% पर एनम, और जो इंटरेस्ट फर्म ने निर्मल को देना है परसेंटेज उसका नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स इट इज 6%। ऑलवेज टू बी चार्ज 6%, इंटरेस्ट ऑलवेज बी अलाउड 6%। तो सॉल्यूशन इज इंटरेस्ट, द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म was 10,200, loss incurred by the firm ₹10,000. It is written here, it's hidden under this paper. It is 10,000 was the loss firm का 10,000 आया। इंटरेस्ट अलाउड टू निर्मल, 2 लाख का लोन दिया था निर्मल ने, कब दिया था 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर से 31 मार्च तक, इट वर्क्स आउट दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का इंटरेस्ट निर्मल को अलाउ किया जाएगा। ऑफिशियल रेट इज 6%, इट वर्क्स आउट 4,000 रुपीज। 4,000 रुपीज का इंटरेस्ट हमने निर्मल को, या हमने मीन्स फर्म ने निर्मल को अलाउ करना है। लेस इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम पवन। पवन ने कितना लोन लिया था फर्म से, पहली ही लाइन में दिया हुआ है। फर्म ने पवन को 5 लाख रुपए का लोन 1 अप्रैल को दिया, 5 लाख रुपया 1 अप्रैल को। इट मीन्स 31 मार्च तक ये पैसा एज इट इज पवन ने यूज किया 12 महीने तक। तो पवन से 5 लाख रुपए पर 10% पूरे साल का इंटरेस्ट फर्म ने चार्ज किया, इट वर्क्स आउट 50,000। ये फर्म की इनकम है। ऑलरेडी देयर वाज ए लॉस ऑफ ₹10,000, 50,000 माइनस लॉस
40,000 अवेलेबल प्रॉफिट हुआ। हाउ कम 50,000? यह इंटरेस्ट निर्मल ने फर्म को दिया है 50,000। 10,000 का ऑलरेडी लॉस था, वो लेस कर दिया। जो हमने निर्मल को 4,000 का इंटरेस्ट दिया था वो लेस कर दिया। सो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट is 36,000. This is the solution of question number, this question that is about interest on loan. After telling you interest on drawings and interest on loan, जिस पर्पस के साथ हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, डिवाइजेबल प्रॉफिट ढूंढना, पार्टनर्स में उस डिवाइजेबल प्रॉफिट को बांटना, और उस प्रॉफिट, न केवल प्रॉफिट बल्कि जो कुछ भी अमाउंट्स फर्म ने पार्टनर्स को अलाउ किए हैं उन सबको नेट प्रॉफिट में से लेस करके डिवाइजेबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। और हम जानते हैं यार इस बात को तो कि जो नेट प्रॉफिट फर्म का हुआ उसमें से जो भी अमाउंट्स पार्टनर्स को अलाउ कर रहे हैं वो नेट प्रॉफिट के अमाउंट को कम कर देंगे। और सिर्फ एक अमाउंट है जो कि फर्म अपने पार्टनर से चार्ज कर सकती है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो फर्म की इनकम है, उससे नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैंने प्रोफॉर्मा में आपको एप्रोप्रिएशन के बताया था कि नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया गया है वो भी हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू अ पार्टनर, ये सब चीजें फर्म अपने पार्टनर्स को अलाउ कर रही है तो उसको हम एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। उसी पर बेस है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट सेज प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account under fixed capital method and also in fluctuating capital method. That says, question says, Atul and Nirmal, Atul and Mithun are partners sharing profits in the ratio of 3:2. बच्चों ये 3:2 का रेशो है इनके डिवाइजेबल प्रॉफिट को बांटने के लिए। बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 24 वर एज फॉलोज। जो अतुल का और मिथुन के अकाउंट में बैलेंस थे इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो इस प्रकार से हैं। लोन अकाउंट, जो फर्म को अतुल और मिथुन ने लोन दिया है। अतुल का लोन 3 लाख क्रेडिट। क्रेडिट मींस अतुल ने फर्म को लोन दिया है, अतुल ने फर्म को लोन दिया है, ये फर्म की लायबिलिटी है। एंड मिथुन 2 लाख डेबिट। डेबिट का मतलब फर्म ने मिथुन को लोन दिया है, ये फर्म की एसेट्स है। इनका कैपिटल अकाउंट्स विच आर शोन हियर फिक्स्ड। फिक्स का मतलब कैपिटल कैन नेवर बी चेंज। अतुल की कैपिटल 5 लाख और मिथुन की कैपिटल 6 लाख। What they say, it was agreed to allow and charge interest at the rate 8% per annum on loans taken and given partnership and provide to allow interest on capital 10% per annum. पहले हम interest on loan के बारे में बात करेंगे। They say it was agreed to allow and charge interest at 8% per annum. यहां पर आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि फर्म ने 3 लाख रुपया अतुल से लिए हैं और 2 लाख रुपया फर्म ने मिथुन को दिए हैं। इन दोनों ही लोन्स पर 10%, 8% इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि अतुल ने फर्म से को लोन दिया है तो फर्म अतुल को इंटरेस्ट देगी। मिथुन ने फर्म से लोन लिया है
तो फर्म मिथुन से चार्ज करेगी। फर्दर दे से पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इनकी जो कैपिटल लगी हुई है ना, अतुल की 5 लाख और मिथुन की 6 लाख, उस पर इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 10% पर एनम से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स was charged at the rate interest on drawings was charged from partners that is 5,000 each। कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे यार, ये तो मजा आ गया, ये तो मजा आ गया, हमें कैलकुलेशन ही नहीं करनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। कैलकुलेटेड दे रखा है उन्होंने कि हर पार्टनर से 5,000 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज करो। इफ यू सी इट इन लम सम, तो 3 थिंग्स आर देयर। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन अतुल को देना है, फर्म दे रही है, मिथुन से चार्ज करना है क्योंकि मिथुन को लोन दिया है फर्म ने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म अलाउ करेगी, एंड दोनों से 5,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति पार्टनर 5,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है। फर्दर दे से नेक्स्ट स्टेंजा, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव वाज 2,28,000। इन सबको देने से पहले हमारी फर्म का प्रॉफिट 2,28,000 था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार फिर रिमाइंड करा रहा हूं मैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आई सेड फर्म की सिर्फ एक इनकम है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एंड फर्म जो कुछ भी अलाउ कर रही है वो फर्म का एक्सपेंस है। बच्चों ध्यान रखिए प्लीज, जो एक्सपेंस है वो हमेशा एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा, और जो इनकम है वो हमेशा एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक फॉरवर्ड फॉर द प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव was 2,28,000। I have written by profit brought down, by net profit you may write, by net profit brought down 2,28,000। Now look for the interest on loan। अतुल ने फर्म को लोन दिया है 3 लाख रुपीस का। कब? 1 अप्रैल से हमारी बुक्स में है। इसका मतलब 3 लाख रुपीस पर 6%, 10% के हिसाब से, 8% के हिसाब से, आई एम सॉरी, क्वेश्चन में दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 3 लाख का 8% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, बिकॉज ये लोन 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक फर्म में रहा, यानी कि पूरे 12 महीने। तो इस पर हम 3 लाख पर 12 महीने का इंटरेस्ट यानी कि पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे 8%, it works out 24,000। How come 3 lakh into 8/100? I'm sure you must have got। निर्मल ने फर्म से लोन लिया है 2 लाख रुपीस, एंड ये लोन भी पूरे साल निर्मल एंजॉय कर रहे हैं, तो निर्मल से इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म, एंड दैट विल बी अनदर इनकम ऑफ द फर्म। आई हैव रिटन बाय मिथुन इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख रुपीस मिथुन ने लोन दिया, पूरे साल मिथुन ने यूज किया, 8% इंटरेस्ट इज 16,000। पहली बात, लोन पर इंटरेस्ट क्लियर हो गया। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमसे कहा गया है 10% पर एनम चार्ज कीजिए। 5 लाख रुपीस अतुल की कैपिटल है, 5 लाख रुपीस का 10% 50,000 इंटरेस्ट अतुल को दिया। 6 लाख रुपीस मिथुन की कैपिटल है, मिथुन को 6 लाख पर 10% 60,000 रुपीज दिया। एनी डाउट? आई एम श्योर इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। एंड लास्टली हमसे कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज चार्ज 5,000 ईच, वो हमारी फर्म की इनकम है। दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अतुल से 5,000 एंड मिथुन से 5,000। नाउ इन द क्रेडिट साइड आई हैव रिटन नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन charge from Mithun, interest on drawings charge from Atul and Mithun। In the debit side, interest on loan जो अतुल को फर्म दे रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म अतुल और मिथुन को दे रही है, ये हमारे डेबिट हो गई, ये हमारी क्रेडिट हो गई। क्रेडिट का टोटल करा, इट इज 2,54,000,
2,54,000 में से जो अमाउंट मैंने डेबिट में लिखे हैं उसको लेस कर दिया तो मेरा डिवाइजिबल प्रॉफिट आ गया, इट इज 1,20,000। और ये 1,20,000 आई हैव बाउंड टू शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 इट्स 72,000 अतुल को दिया। 1,20,000 दैट इज डिवाइजिबल प्रॉफिट इंटू 2/5, हिज शेयर वाज 2/5, कैलकुलेट किया 48,000 मिथुन को दे दिया। दिस इज द स्टोरी ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गाइस बच्चों, एप्रोप्रिएशन का साइज whatever amounts were transferred were allowed by the firm to its partner. They are the benefit of the partner. उससे उनको मिल रहा है तो उनकी कैपिटल बढ़ जानी चाहिए, और जो अमाउंट फर्म से चार्ज किए गए, फर्म ने चार्ज किए, उससे उनकी कैपिटल कम हो जानी चाहिए। यानी कि इसका इफेक्ट डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में पड़ता है। बच्चों, फर्म दो तरह की कैपिटल मेंटेन कर सकती है, दो तरह से, और ये बात डिसाइड होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनरशिप डीड में, कि हमारी फर्म में जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड रहेंगी या फ्लक्चुएटिंग रहेंगी। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब उस कैपिटल में कभी कोई चेंज नहीं हो सकता। जो कैपिटल पार्टनर्स ने इनिशियल स्टेज पर लगाई थी, सिर्फ अगर एडिशनल कैपिटल वो लेकर आ रहे हैं या कैपिटल में से कुछ विड्रॉ कर रहे हैं, तब तो कैपिटल चेंज होगी। अदरवाइज जो कुछ अमाउंट उनको ईयरली मिल रहे हैं उससे कैपिटल पर इफेक्ट नहीं होगा, और जो अमाउंट वो ईयरली विड्रॉ कर रहे हैं ड्रॉइंग्स वगैरह का, उससे कैपिटल पर इफेक्ट नहीं होगा अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। यानी कि कैपिटल में सिर्फ बैलेंस कैपिटल का लिखा जाएगा, एडिशनल कैपिटल आए तो वो क्रेडिट में लिखी जाएगी। अगर पार्टनर्स ने कोई कैपिटल विड्रॉ करी है तो वो उनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा, इसके अलावा कभी भी कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जब भी कैपिटल फिक्स होंगी तो वो सारी चीजें जो फर्म पार्टनर्स को अलाउ कर रही है या फर्म पार्टनर से चार्ज कर रही है, कहीं ना कहीं तो उनके कैपिटल अकाउंट में लिखे ही जाएंगे। उसके लिए हमें हर पार्टनर का करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। शॉर्ट में आप ये कह सकते हैं कि अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तब हमें हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाना पड़ेंगे। करंट अकाउंट में कैपिटल के अलावा हर चीज जो पार्टनर्स को अलाउ की जा रही है वो लिखी जाएगी। पार्टनर्स ने अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया है वो लिखा जाएगा, पार्टनर्स ने अगर पैसा विड्रॉ किया है तो वो भी लिखा जाएगा।